our next topic is quadrilaterals. What is a quadrilateral? Quad means four. Okay, quad means four and lateral means lines. So any closed figure which is formed by joining four lines या four points are called quadrilateral. कोई भी ऐसी फिगर जिसमें चार लाइन हो और क्लोज्ड फिगर हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस ABCD, इसे हमने चार लाइन से बंद करके क्लोज्ड फिगर बनाई है. देन दिस ABCD इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. लाइक ट्राइंगल. ट्राई मीन्स तीन, एंगल मतलब एंगल, जिसमें तीन एंगल हो वो ट्राइंगल होता है. तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 होती हैं. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स फोर, तो इसमें कितनी लाइंस होंगी? 4 होंगी. पेंटागन मीन्स, पेंटा मीन्स 5, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं. एंड पॉली मीन्स मैनी, तो पॉलीगॉन्स उसके बाद जैसे हेक्सागन, हेप्टागन जितने भी होते हैं वो सारे पॉलीगॉन्स कहलाते हैं. सो हेयर वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो इट इज़ क्लियर दैट what is a quadrilateral? It is a closed figure obtained by joining 4 points or by 4 lines. Now what parts a quadrilateral has? A quadrilateral has 4 vertices. एक होता है तो हम उसको वर्टेक्स बोलते हैं. जब इसका प्लूरल फॉर्म होता है तो ये कहलाता है वर्टिसेस. सो व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? द वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ABCD मीन्स कॉर्नर. जो भी उस क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर होंगे वो उसके वर्टिसेस कहलाएंगे. तो क्वाड्रिलेटरल है इसमें, इसलिए इसमें 4 कॉर्नर्स होंगे. देयरफॉर द 4 कॉर्नर्स आर ABCD मीन्स द वर्टिसेस ऑफ दिस quadrilateral. So each quadrilateral has 4 vertices and 4 sides. 4 side होंगी. This AB is one side, BC, CD and AD. These are the 4 sides. Now it has 4 angles. Angles कौन से होंगे? Angle A, angle B, angle C and angle D. These are the 4 angles of a quadrilateral. And it has 2 diagonals. Diagonals you all know, the line segment which join two opposite points. कोई भी वो दो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट लाइंस को ज्वाइन करती हैं वो डायगनल कहलाती हैं. तो क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 डायगनल्स. ओके, नाउ दीज 2 साइड्स आर कॉल्ड द अपोजिट साइड्स. जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स. और जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. Okay, clear? So the lines which are opposite to each other are called opposite sides and the lines which are joined by a common point are called the adjacent sides. Similarly, these 2 angles are opposite angles and these 2 angles are adjacent angles. Clear these points? So here ABCD is a quadrilateral where ABCD are the 4 vertices. AB, BC, CD and DA are the 4 sides. Angle A, angle B, angle C and angle D are the 4 angles of the quadrilateral and this AC and BD are the 2 diagonals of a quadrilateral. Now the basic property of any quadrilateral is the sum of all the 4 angles of a quadrilateral is always 360 degree. What is it? The sum of all the 4 angles of a quadrilateral are 360 degree. आगे चल के जब हम क्वाड्रिलेटरल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके टाइप्स बताएंगे. सो इट इज़ बेस्ड ऑन जस्ट ऑन देयर लाइंस एंड एंगल. इनकी लाइन और इनके एंगल पे ही हम इनको डिवाइड करेंगे किस तरीके इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी. So this is called the angle sum property, that the sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. So this is called angle sum property. Now types of quadrilateral, there are 6 types of quadrilateral. The number 1 among these, the common quadrilateral is a parallelogram. So what is a parallelogram? Parallel means something is parallel over here. Okay, so the quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel. Okay, something is missing over here, sides. So a quadrilateral in which both the pair of opposite sides are parallel are called parallelogram. See this figure. This ABCD is a
पैरेललोग्राम, इसमें ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है. नाउ सी व्हाट आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच आर हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट. अगर इन दो लाइंस के बीच में हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा देन दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस. एंड द पैरेलल लाइंस नेवर मीट. जैसे आपकी दो रेल की पटरियां जा रही हैं, आप देख रहे हो जितनी भी दूरी पे जाएंगी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. सेम हेयर कि ये दो ए बी और सी डी, ये देखिए आमने सामने हैं, पैरेलल लाइंस हैं. एंड दिस ए बी, ए डी एंड बी सी, दीज टू आर द पैरेलल लाइंस. सो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ द पेयर्स, मीन्स एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, दे आर सेड टू बी पैरेललोग्राम. नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. A quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel and each angle is 90 degree. रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, बस इनका सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है. पैरेललोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती. इतना हमें ज़रूर पता है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे और एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, बट हेयर चारों एंगल्स क्या होंगे, दे आर ऑल आर ऑफ 90 डिग्री. मीन्स इन अ पैरेललोग्राम इफ ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री देन इट विल बी अ रेक्टेंगल. अगर पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएं तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इनके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस में अगेन ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल बट द एंगल आर नॉट ऑफ 90 डिग्री. इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं. ठीक है, बट एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं. और एक और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है दैट देयर डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल. जो डायगोनल्स हैं वो इनके राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर जो होता है, मीन्स पेयर में दो लाइनें आती हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन नहीं. द पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देखिए इसमें ये वाला पेयर पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि ये दोनों आगे अगर हम एक्सटेंड कर दें तो जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो इसलिए दैट मीन्स ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है. तो सिर्फ क्या पैरेलल है, ए बी और सी डी. तो जिसमें एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होगा देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. एंड द लास्ट वन इज काइट. काइट इज इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. अभी हम क्या डील कर रहे थे, अपोजिट साइड्स पे कर रहे थे. अब इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड. काइट का शेप आप सबको पता है, काइट उड़ाई है, सेम काइट है, बस इसमें क्या है, ऊपर की दो जो हैं एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल होंगी और नीचे की दो जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जुड़ी हुई साइड्स हैं, वो इक्वल होंगी और इसका डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. So these are the common properties of the types of quadrilateral. Now few properties of parallelogram is also given in your syllabus. So what is that property? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Now suppose it is a parallelogram. ये कोई पैरेललोग्राम है और हमें ये प्रॉपर्टी दी गई है, ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है और हमें ये बताया गया है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि इसका डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम का इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. कॉन्ग्रुएंसी आप सबको पता है, कॉन्ग्रुएंसी वो चीज़ होती है कि कोई भी दो फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगी जब कोई भी दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम और इक्वल होंगे. Then they are said to be congruent. So the first property of a parallelogram is that the diagonal divides it into two congruent triangles. तो देखिए जब एक diagonal इसको divide कर रहा है तो कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और एक बन रहा है CAD. तो हमें पता है ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और एक कॉमन लाइन है. इसका मतलब तीनों ट्रायंगल की लाइन इन दोनों ट्रायंगल की तीनों लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं. दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि कोई भी डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम का, चाहे ये वाला डायगोनल हो चाहे ये वाला, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया ABC और दूसरा बन गया ADC. ओके.
इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी हमने पीछे देखा है कि अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी होती हैं इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर हर पेयर अपोजिट साइड का इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। एंड अगर अपोजिट, अभी जो हमने पढ़ा है उसका वाइस वर्सा है ये, कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सेम हेयर कि अगर अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये देखिए, ये डायगोनल्स एक दूसरे के इसको आधे आधे पे काट रहे हैं, मीन्स जितना ये ओ पॉइंट है तो ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा। ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल, मीन्स ओ डी और ओ बी जो है वो बराबर होंगे। और अगर डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, ये तो हमने आपको बता दिया है। सो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इसका वाइस वर्सा ये है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो वो पैरेललोग्राम है या अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए तो वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और अगर एंगल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो मूविंग टू एक्सरसाइज 1, मूविंग टू एक्सरसाइज 8.1, द क्वेश्चन नंबर 1 इज, आई एम सॉरी आज बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं, आई हैव सम बैक प्रॉब्लम सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर ओनली। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। सो रेशियो ऑफ एंगल्स कितना है? 3:5:9:13. What we have to find? All the angles. Angles we have to find. हमें एंगल्स का रेशियो दे दिया गया है और एंगल्स वी हैव टू फाइंड. सो इट इज़ वेरी इजी दैट यू हैव डन इन योर क्लास 8th ऑल्सो. बहुत ईजी है, क्लास 8th में आप लोगों ने किया हुआ है ये क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट? सो लेट द एंगल्स, जब भी हमें रेशियो हटाना पड़ता है तो हमें उसके साथ एक कुछ कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना पड़ता है. लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x. ओके, कोई भी कांस्टेंट हमें साथ में इनके लिखना पड़ेगा. फिर हमें इस x की वैल्यू निकालेंगे. नाउ वी नो 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. And what is this property called? This property is called angle sum property. क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी की? कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ 3x plus 5x it will be 8x. 8x plus 9x will be 17x and 17 plus 13 will be 30x. So 30x is equal to 360. So x is equal to 360 by 30. 0 0 cancel. 3 से 3 1s are 3 and 3 2s are 12. अगर आपको ऐसे नहीं आता है लोएस्ट टर्म में लिखना, वैसे तो क्लास 6 7 8 सब में लोएस्ट टर्म में लिखना सिखाया जाता है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट इट इन लोएस्ट टर्म यू कैन डिवाइड. मैथ्स को बहुत ज़्यादा टिपिकल मत बनाइए. मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है. आप जैसे चाहो करो, ठीक है. आपको एग्जाम्स में भी मार्क्स जो हैं वो आपके स्टेप वाइज मिलते हैं, स्टेप पे मिलते हैं. ये नहीं कि आपने पूरा सही करा और आंसर आपका गलत आ रहा है दैन यू विल गेट 0. No, you will get marks on the basis of step. If you are doing wrong and your answer comes out to be right, that is the wrong thing. आप कर ऊपर से गलत रहे लेकिन आंसर अगर आपका सही आ गया, इसका मतलब आपने कहीं से टीपा है 100%, ठीक है. लेकिन अगर आप ऊपर से सही कर रहे हो और आपका आंसर गलत आ गया, दैट मीन्स आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली. तो जो कैलकुलेशन का पार्ट आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं. तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई. तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या है? अब फर्स्ट एंगल निकला है
यहाँ क्या था 3x विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 12 36 डिग्री। ओके, सेकेंड एंगल क्या आया 5x विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 12 60 डिग्री। अरे यार ये थर्ड और ये 7th और 8th का क्वेश्चन है, ये आपके क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, सबसे इजी है बस, इसके बाद कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है। 108 डिग्री एंड फोर्थ एंगल इज 13x, तो 13x विल बी 12 इंटू 13 कितना होगा 144 प्लस 12 156 डिग्री। ओके, अब आप चेक करने के लिए अपना इन चारों को ऐड करके देख लीजिए, अगर आपका 360 सम आ रहा है दैट मीन्स यू आर राइट। सो दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल दिस फॉर टुडे। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तो टुमारो वी विल स्टार्ट डू द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब थ्योरेटिकल बेस हैं, और वो सब आपको जब तक प्रॉपर्टीज़ लर्न नहीं होंगी काइट की, रोम्बस की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, देन यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस